Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying your online classes going nowadays. Students, in our English online class, we are going to take your reader, Beehive, textbook of English, and from your textbook of English, we are going to start your first lesson, which is The Fun They Had. The Fun They Had. Let's start reading. Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools, as we know now, them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. So now we are going to read the lesson we are going to read is about the future when there will be no books or schools, and then we have to imagine what kind of life or how will student learn at that time. The diagram, there is a diagram given below on your page of your book first, and the diagram will show you how students will learn in the future. Learning through computers, robotic teacher, virtual classroom or moving e-text. Now you have to do this. In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. So this is your homework and you have to write these things in your classwork notebook of English. 3 things you have to write best about your school and 3 things you would like to change about your school. Have you ever read words on a TV or computer screen? क्या तुमने कभी भी TV या computer screen पे words पढ़े हैं? Can you imagine a time when all books will be on computers? Can you think of a time when all the books will be on computer? There will be no book and there will be no books printed on paper. और मतलब कोई भी book ही नहीं होगी जो papers पे print होके आई हो. Would you like such books better? क्या तुम्हें वो books पसंद आएंगी? Margie even wrote about it that night in a diary. On the page headed 17th May 2157 she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी ने अपनी टॉमी को एक बुक मिली थी, रियल बुक, असली किताब मिली थी. तो इट इज़ द टाइम ऑफ फ्यूचर. वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम. That is 17th May 2157. It was the night of 17th May 2157. Margie was writing a diary and in her diary she wrote that today Tommy found a real book. आज टॉमी को एक असली किताब मिली. It was a very old book. वो बहुत पुरानी बुक थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसको कहा कि जब टॉमी छोटा बच्चा था, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो उसके दादाजी ने उसको टॉमी को बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सारी बुक्स पेपर्स पे प्रिंट होती थी, ऐसे कंप्यूटर्स और टीवी स्क्रीन पे नहीं आती थी. They turned the pages which were yellow and crinky and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. So they are reading that old book and the pages of that book were yellow and crinky means with many folds or lines and it was awfully funny to read words that stood still. और ये बड़ा अजीब सा था, बहुत हास्या मतलब मजाकिया था कि वर्ड्स जो हैं वो वैसे के वैसे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं जैसे वो कंप्यूटर स्क्रीन्स पे मूव करते हैं, आपको तो पता ही है. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. तो जब उन्होंने पीछे वाले पेज पे आगे टर्न किया तो उन्होंने देखा कि उस पर भी वही सेम वर्ड्स लिखे हुए जो उन्होंने फर्स्ट पेज पे पढ़े थे. जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. सो एज लाइक वी से शी शिट, इट्स लाइक दैट. जी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, क्या फालतू बकवास है ये. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. जब बुक्स के थ्रू जा रहे हो, बुक को पढ़ रहे हो तो उसको फेंक दो. आई गेस, मुझे ऐसा लगता है. आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडेंट थ्रो इट अवे. तो जो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है या कोई भी स्क्रीन है टेक्निकल, उस पर मतलब मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और वो बहुत अच्छा है मेरे लिए और बहुत अच्छी बुक्स हैं और मैं उनको कभी नहीं फेंकूँगा. सेम विद माइन सेड मार्जी. और मार्जी भी कहती है ऐसा ही मेरे साथ है. शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. वो 11 साल की थी और उसने ऐसी कोई टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी
टॉमी ने देखी है, क्योंकि टॉमी कितना था, ही वॉज 13, टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड एंड मार्जी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्जी कहती है, तुम्हें ये कहाँ मिली? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटीक। एटीक, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यूज एज अ स्टोर रूम। छत के नीचे कोई भी कमरा जिसको स्टोर रूम के जैसे यूज़ करते हैं इज़ एटीक। सो ही सेड दैट ही फाउंड दिस बुक इन हिज हाउस। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। तो शी वॉज आस्किंग, ये बुक किसके बारे में है? तो टॉमी सेड स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स showing you something is worthless, means giving a look of having worthlessness. School, what's there to write about school? स्कूल के बारे में ऐसे लिखने के लिए क्या है? I hate school, मुझे स्कूल पसंद नहीं, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती है और अब उससे ज़्यादा करती है जैसा पहले करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी कह रही है कि उसका मैकेनिकल टीचर है, वो उसको हमेशा होमवर्क टेस्ट पे टेस्ट देता रहता है जोग्राफ़ी में, और वो हमेशा गंदा करती रहती है, उसके मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आते, एक्सपेक्टेड नहीं है, और उसकी माँ जो है वो बड़ी दुखी है उससे, और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, गोल मटोल आदमी है, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और कैसा आदमी है? पूरा बॉक्स है टूल्स का और उस पर क्या है, वायर्स लगे हुए हैं, डायल्स है, नंबर डायल करने के लिए डायल्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्जी को देख के मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वो उसको उसको फिर वो लेके जाता है। मार्जी एट होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको वापस दोबारा एक साथ नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, लेकिन उसको सब पता था और 1 घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, और उसने फिर उसको जोड़ दिया। लार्ज एंड ब्लैक अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। और फिर उसने काउंटी टीचर ने उसकी स्क्रीन को फिर से ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक, बड़ी सी और काली भद्दी उसकी बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स आर शोन, सारे लेसन्स उसको दिख रहे हैं। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट वाजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं है। द पार्ट मार्जी hated most was the slot where she had to put homework and test papers. उसको सबसे बुरा जो लगता था वो था वो given space, time और position in which she had to write the homework or test paper. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. वो हमेशा पंच कोड में कोई कोड लैंग्वेज में लिखते थे ताकि उसको वो हमेशा याद हो जाए, और जब वो 6 ईयर्स की थी तब से वो ये काम कर रही थी बेचारी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर जो है रोबोटिक है, उसको तो मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता कैलकुलेशन करने में। द इंस्पेक्टर हैज स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हट। जब उसने उसका कैलकुलेशन कर लिया टेस्ट पेपर का तो ही लाव्ड विद अ गर्ल, और उसको सर पे पैट किया, मतलब थपथपाया उसके सर को प्यार से। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। वो कहता है कि ये तुम्हारी बेटी का दोष नहीं है, छोटी लड़की का दोष नहीं है। मिसेस जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज जियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो वो उसको कहता है कि मुझे लगता है आपकी बेटी की गलती नहीं है, जो जोग्राफी सेक्टर है उसमें जो स्टैंडर्ड और लेवल है स्टूडेंट्स का वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। Those things happen sometimes. I showed you up to an average 10-year level. वो कह रहा है कि इसकी समझ में क्या, ये तो जो 10 साल का बच्चा हो उसके समझ में आने वाला नहीं, उससे हायर लेवल का है। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again. वो कह रहा है कि जो उसका ओवरऑल पैटर्न है वो काफ़ी संतुष्टि है, उससे वो संतुष्ट है, और वो फिर से मार्जी के हेड पे पैट करता है। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away together. मार्जी फिर बेचारी असंतुष्ट हो गई है उससे, और वो कह रही है कि काश उसका टीचर उसको वापस चला जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो क्योंकि टॉमी का एक टीचर था हिस्ट्री वाला, उसका मतलब ब्लैंक ऑफ होने के बाद वो वापस चला गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए वो टॉमी को कहती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़।
because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. फिर वो मार्जी को कहता है कि स्टूपिड, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, ये बहुत पुराने टाइप का स्कूल है, सालों साल पहले का. ही एडिड लॉफ्टिली इन अ सुपीरियर वे, pronouncing the words carefully centuries ago. Now he used to pronounce like an very ideal or wisest person who used to recite stories centuries ago, शताब्दियों पहले. Margie was hurt. Well, मार्जी को थोड़ा दुख हुआ. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. कहते मुझे नहीं पता कि मतलब किस तरह के स्कूल थे उस टाइम पे. She read the book over his shoulder for a while. उसके कंधे के ऊपर जो बुक से थोड़ा वहाँ बुक रखी थी उसने उसको पढ़ा. Then said, anyway they had a teacher. कहते कुछ नहीं, उनके पास एक टीचर था. That's all for today, students. We will read after this in our next class. Till that time, stay safe at home and learn the lesson pages. Mark the hard words and do those questions which were asked in the front page, first page. 3 things you like about your school and 3 things you wanted to change. Okay, write them in your notebook. Till then, that time, stay safe at home. Be blessed.